का स्वागत है। ये नाट्य समारोह कलाकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के विशेष प्रयासों द्वारा अपने शुरुआत के 5वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। साल ये हमारा 5वां नाट्य समारोह है और इस नाट्य समारोह में भी आज हम अंतिम चरण में हैं, यानी कि 13 दिवसीय नाट्य समारोह का आज 13वां दिन है। और आज आपके सामने जो नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है उसका नाम है दूसरा अध्याय, जो कि सब टाइटल दिन गिनते हैं कोई और के शीर्षक से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके लेखक हैं अजय शुक्ला जी और इसकी निर्देशिका है चित्रा मोहन जी। ये नाटक हमारे सामने संस्कृति सेवा संस्थान लेकर के आया है। इससे पहले कि हम नाटक शुरू करें, कुछ औपचारिकताएं होती हैं इस प्रकार के आयोजनों की। हमें खुशी है कि हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्रीयुत हरीश गुरुवंश जी मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर सिडबी हैं, और इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्रीयुत आर.के. उपाध्याय जी भी मौजूद हैं, जो कि सिटी कॉन्वेंट स्कूल के संस्थापक प्रबंधक हैं। मैं अनुरोध करूंगा एसोसिएशन के पदाधिकारियों से कि वे कृपया इनको और माननीय टी.सी. पांडे जी, जो कि डीआईजी पुलिस हैं, उनको लेकर के मंच पर लाने की कृपा करें। मगर लगा भैया थापा। मैं अपने माननीय अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच के मध्य में आ जाएं। और भाई टी.सी. पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि हम रंगकर्मियों की ओर से हमारे मुख्य अतिथि महोदय को बुके देकर उनका स्वागत करने की कृपा करें। माननीय आर.के. उपाध्याय जी को भी बुके देकर स्वागत करने की कृपा करें। मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा आशीर्वचनों के लिए। Mr. Mishra, Mr. Pandey, my dear friends, I hope you will permit me to speak in English. मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि अगर जो अगली बार आप गलती करेंगे मुझे बुलाने की, तो मैं हिंदी में ही बोलूँगा, परंतु इस बार मुझे अंग्रेजी में बोलने दीजिए। Friends, I have been posted in India and abroad on a number of occasions, and I have visited many countries, many places. But I think I am indeed very fortunate to be posted in Lucknow. In fact, if you look at the I am lucky to be present here in Lucknow with you. The reason why I like Lucknow, I think it is on account of a variety of reasons. There may be bigger cities like Bombay, Delhi, Calcutta, but the kind of culture that you find here, I think that is absolutely amazing. You have music on the streets, you have music everywhere in all the streets of Lucknow. I think it's a great privilege to be living in a city like this. I must say that in my life there were two passions. One was cricket and the second was culture. Now if you look at the culture of Lucknow, the culture of Lucknow is progressive, and there is a phrase in English, going from strength to strength. And if you look at the Lucknow Mahotsav, or if you look at this particular forum,
I was told that some years back there used to be only one drama which used to be staged. Now I am very happy to learn that there are as many as 13 dramas which have been staged during this particular period. So Lucknow Mahotsav and the association, it is going from strength to strength. But let us not talk about the cricket team, because they seem to be going just the opposite way. They are going from weakness to weakness. Because what happens is that you find weakness in one particular game, the next time they come up with some new weaknesses. So it was a very good variety program. There were a lot of songs, dances, etc. And in some of the dances, etc., the movement was very intricate, very complex, but yet the children performed with great satisfaction. They performed extremely well. And in songs also, they chose very difficult numbers, but even those difficult numbers, they were able to sing very well. That was the happy part. But the sad part in that entire variety program was that there were no dramas, no skits, no poetry recitation. Nobody even recited a poem written by others. Actually, what happened was that there were 3 participants who recited poems written by others, and they also forgot their poems. Now, this is indeed very unfortunate. I think what has become is that we have become a filmy civilization. I think I would not lay the blame on the children, but I would lay the blame on the parents, because what has happened is that they have not inculcated in them the desire or the interest for other cultures like painting, music, poems, etc. Those things have not been taught to them. I think that is the message that we need to give our juniors, we need to give the society at large. Once again, I must compliment them, and thanks very much for giving me an opportunity to speak to you, and thanks for your patient hearing. Thank you very much. कितनी इंस्पायरिंग चीज आपने कही, और वाकई में आज यूथ को इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हमारी छोटी सी परंपरा में मैं इस नाटक की निर्देशिका चित्रा मोहन जी को आमंत्रित कर रहा हूं मंच पे। कृपया और आगे आ जाइए। संस्कृति सेवा संस्थान बीएनए के ही पास आउट जगमोहन रावत द्वारा स्थापित हुई है, और इस संस्थान ने बहुत ही कम समय में ही लखनऊ रंग आंदोलन में अपनी गहरी पैठ बना ली है, और इसका साफ तौर पर इसका गवाह है गवर घिचोर एवं बाप रे बाप की 17-17, 18-18 प्रस्तुतियां। तो इसी एक अपकमिंग इंस्टीट्यूट की प्रेजेंटेशन है, दूसरा अध्याय, यानी दिन गिनते हैं कोई और। इसकी निर्देशिका है चित्रा मोहन। प्यार का घर खोजता यूं फिर रहा है आदमी। आप मुझे नहीं पहचाने, पहले कभी मिले भी तो नहीं हम। वैसे हम लोग हमेशा मिलते हैं, लेकिन आप अपनों के साथ होते हैं, इसलिए हमसे मिल ही नहीं पाते। हम तो बड़े भाव से आपके ऑर्डर को पूरा करने में जुटे रहते हैं, और सब कुछ देखते समझते हुए निर्विकार बने हम देखा करते हैं। लेकिन अभय और
बच्चा के ख्वाबों को अनदेखा नहीं कर पाया। बरसों पुराना साथ है मेरा उनसे दूर, उनसे जुड़ा हुआ और उनसे जुड़े हुए भी बहुत दूर। आज भी उनकी प्रतीक्षा का साक्षी हूँ। वे दोनों यहीं इसी टेबल पर बैठे बातें करते रहे। आज भी अभय आते ही यही समय रजनीगंधा की खुशबू, इसका मतलब अभय आ गए। मैं चलता हूं। मेरा नाम अभय है, सरनेम भी है मेरा, पर उसके लिए ना तो मैं जिम्मेदार हूं, नहीं आपको कुछ कहना। प्रश्न ये नहीं है कि मैं कौन हूं, बल्कि प्रश्न ये है मैं यहां क्यों आता हूं। यहां मैं अक्सर आता हूं, शायद बीती बातें याद करने के लिए। एक तो इस रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं होती है, इसीलिए यहां आकर के दोहरा लेता हूं जिंदगी के वो बोल जो मेरे जहन में आज भी कल की घटना के समान है। इन सब बातों के लिए शांति चाहिए जो यहां पर है। इसीलिए मैं और नीरजा यहां पर अक्सर के मिला करते। अब आप ये जानना चाहेंगे कि नीरजा कौन? बताता। नीरजा से मेरी पहली मुलाकात आज से करीब 25 साल पहले हुई थी। तब मैं 37 साल का था। अपने कैरियर में बहुत ही अच्छा जा रहा था। अपने आप को बहुत महत्वाकांक्षी तो नहीं कहूंगा, हाँ इस बात का अहम जरूर था कि मैं औरों से बेहतर हूं, डिजर्विंग हूं और आगे तक जाऊंगा। तभी एक ट्रेनिंग कोर्स के सिलसिले में मुझे गोवा जाने का मौका मिला और वहीं पर मेरी मुलाकात हुई नीरजा से, जो सुसंस्कृत थी, पढ़ी लिखी, सुंदर, लगभग मेरी ही उम्र की, शादीशुदा थी। ये जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम दोनों एक ही शहर से थे, लेकिन इससे पहले कभी मिले नहीं। 15 दिन एक साथ क्या रहे, लगा कि मानो सब कुछ बदल सा गया। बहुत अच्छा गाती है। थैंक यू अभय, लेकिन तुम्हारे सपोर्ट के बिना मैं बिल्कुल नहीं गा सकती थी। थैंक यू सो मच अभय। इसी बात पे ट्रीट हो जा। ट्रीट? अभी और इसमें? ओके, नो प्रॉब्लम, चलते हैं। आई एम सॉरी। सॉरी अभय। सॉरी फॉर व्हाट? अरे मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। वो क्यों? तुमने मुझे इतना हसीन मौका जो दिया। You naughty!
4 बजे अभय ने तो मुझसे कहा था कि वो 3:30 बजे आ जाएगा। नहीं आना था तो पहले बोलना चाहिए था ना। उसको मालूम है कि मुझे वेट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आने दो अभी को हटाती हूँ। अभय क्या टाइम हुआ है? तुमने क्या बोला था ना 3:30 बजे का? पूरे आधा घंटा लेट है आप। आपको पता है कि मुझे वेट करना अच्छा नहीं लगता। Oh, sorry. It's a first and last chance, okay? मेरे लिए? और नहीं तो किसके लिए? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये फूल बहुत पसंद है? नीरजा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। That's why I love you, अभय। अच्छा बताओ, हम लोग गोवा में 15 दिन एक साथ रहे ना? ओहो, 15 नहीं 16। 16? ट्रेन में भी तो हम साथ थे। ओह हाँ। मुझे क्या लग रहा है बताओ? हाँ बोलो। You are my soulmate. पागल। मैं पागल हूँ? क्यों? क्योंकि तुम मुझे चाहने लगे। क्यों? Because I have also started loving you. सच? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा, पर ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। अभय, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए? अरे उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तो? पहले लम्हों को तो जिए। और उसके बाद? उसके बाद भी सोचा। तो? सोचा तुमको? तो थोड़ा इंतजार करो, बताओ। इंतजार ही तो कर रहा हूँ। अच्छा, कब से कर रहे हैं आप इंतजार? जब से तुमसे मिला। बताओ क्या करूँ? टी, कॉफी and wine is the third choice. Oh God. वेटर, 2 कॉफी। अच्छा, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, लग गए वापस काम पे? मैं तो कल भी ऑफिस गया था। कल ही? Oh my God, आते ऑफिस चले गए? मैं तो कल सारे दिन सोती रही। सच, बहुत थकान सी लग रही थी। दिवाकर ने भी छुट्टी ले ली थी कल। Oh my God, ये गोवा का ट्रिप ना बहुत ही तारीख था। मैं तो कल सुबह नहा धोकर से सीधे तैयार हुआ और ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस से तुमको फोन किया तो पता चला कि तुम आज ऑफिस आओगी। ये ऑफिस छोड़कर मुझसे मिलने की क्या सोची? पता है, ऑफिस में मन नहीं कर रहा था, तुमसे मिलने का मन कर रहा। मैं जानती तुम्हारा फोन जरूर है। चाहती क्या चाहती थी? इंतजार ये क्या? पिछले 15 दिन एक साथ रहने के बाद 24 घंटों से तुमसे अलग, बड़ा अजीब था। कैसा अजीब सा? पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कुछ मिसिंग है। I see. मैं मिसिंग थी। नीरजा, तुम हंस रही हो, मैं सीरियस हूँ। तो क्या करूं? तुम ही बताओ। तुम्हारे खुल करके हंसना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर कभी कभी लगता है। क्या लगता है कभी कभी? कभी कभी लगता है इस हंसी के पीछे तुम कुछ छिपा है। शायद कुछ। अबे तुम मेरी हर बात कैसे समझ लेते हो? ऐसे ही? क्या लगा तुम्हें? अरे तुम सीरियस हो गई? हंसो हंसो, आई लाइक इट। तो तुम ही बताओ क्या करूं? रोते रहने से तो हंसना अच्छा है। अगर मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो किसी ना किसी बात पे रोते रहते हैं। Just like me. Obviously. Okay. एक बात
तुमने मुझे मिस किया? यही पूछना चाहते थे ना इतनी देर से? हाँ। हाँ, बहुत मिस किया। तो फिर तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? बताया ना, सोती रही। अरे कम से कम एक फोन तो कर ही सकती थी। दिवाकर घर पे था इसलिए फोन नहीं कर पाया। शायद इसीलिए। अपने घर से फोन भी नहीं कर सकती हो। छोड़ो ना अब है। मैंने सोचा ऑफिस जाकर आराम से बात करूंगी। तुम बताओ, तुम क्या करते रहे सारा दिन? बस तुम्हारे बारे में सोचता रहा और तुम्हारे गाए गाने गुनगुनाता रहा। ये चांद होकर न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये चांद क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही सोच रही थी। क्या? ऐसे तुमसे मिलना, इतने कम समय में इतनी इंटीमेसी हो जाना। हाँ जी, मैंने भी नहीं सोचा था कोई ऐसा जो बिल्कुल अपना सा। अच्छा आप इस बारे में अपने बारे में मैं कुछ समझी नहीं। नीरजा, तुम बहुत अच्छी तरह से समझती हो। देखो, हम लोग की दोस्ती का भी यही कारण रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते। अबे मैंने अभी ठीक से सोचा ही नहीं। इनफैक्ट मैं अकेले सोच भी नहीं सकती। सोचा तुमसे मिलकर बात करूं। तुमने क्या सोचा? मैं तुम्हें बता भी चुका। क्या? यही, तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें समझने के बाद मैंने ये सोचा कि भावना मात्र मेरी अपनी तरफ से नहीं, बल्कि तुम भी ऐसे ही महसूस करते। और फिर मैंने निर्णय किया कि अगर हम दोनों एक साथ हैं तो जिंदगी कुछ और, जिंदगी में जाना चाहिए। जानते हो अबे, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे क्या लगा था? फॉर्मल इंट्रोडक्शन के समय। हाँ, यही कि तुम बेहद अप्रूव घमंडी किस्म के इंसान थे, किसी और को कुछ समझते ही नहीं। अच्छा। और मैंने सोचा था कि मैं इस आदमी से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। पता नहीं क्या समझता है आपको। और क्या लगा? फिर बहुत जल्द तुम्हें समझना शुरू किया। पाया एक नकाब है जो तुम दुनिया के लिए रही, लेकिन भीतर से बहुत ही सरल और सौम्य। कैसे? हॉस्टल की सीढ़ियों से गिरकर जब मुझे चोट लगी थी, पूरी तुम्हारी वजह से। ना तुम गुस्से करके बाहर चले जाते और ना पागलों जैसे मैं तुम्हारे पीछे आती। ओह माय गॉड, कैसे फिसल कर गिरी थी मैं। अगर सर के बल गिरती तो पता है क्या होता? वो तो फॉर्चुनेटली डॉक्टर काला पीछे आ रहे थे, उन्होंने ही मुझे उठाया। अभी तो तुरंत आ गया। हाँ, उस वक्त तुम्हारे चेहरे पे जो भाव थे, तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कुछ कहती। तुम्हें बहुत दर्द लगा। लेकिन हमदर्दी और ग्लानि का भाव तुम में पाया। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग ना होते तो तुम शायद रो देते। पता नहीं क्या करते तुम। हम अपनों से भी अपने बहुत छुपाते। यानी हमें ये कहने में शर्म सी महसूस होती है कि फला व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, प्यारा लगता है और उसके सारे सुख दुख मैं अपनाना चाहता हूँ। तब जाना कि तुम केयर करना चाहते हो। इस अचेतन से चेहरे के पीछे एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है। सब कुछ कह दिया तुम्हारी आंखों ने, तुम्हारी बनावटी अकड़, गंभीरता और सारी एक्टिंग। और क्या लगा? यही कि काश हम साथ होते, अकेले होते। तो परेशानी क्या है? तरीका सीधा सा। मैं कानूनी तरीके की बात नहीं कर रही। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। फिर नीरजा, तुम ये सोच रही हो कि सालों से चले आ रहे सड़े गले बंधन कैसे तोड़ेगा? मेरी एक चीज समझ में नहीं आता कि आदमी सामाजिक रिश्तों को बंधन क्यों कहता है? बंधन इज बॉन्डेज स्लेवरी। तो तुम चाहते हो कि मैं दिवाकर को छोड़ दूं? मैं नहीं कहता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस काम में तुम्हें शांति मिले, जो काम तुम्हें अच्छा लगे वो करो। दूसरों को दिखाने के लिए झूठा जियो। अब है तुमसे मिलने के बाद अब मैं मन से तो दिवाकर के साथ कभी नहीं रह सकती, और शायद पहले भी नहीं थी। पर अब जो कुछ भी है मेरा बच्चा, और इसके लिए मेरे मन में कोई मतभेद नहीं है। होना भी नहीं चाहिए।
मेरे कुछ कर्तव्य है उसके प्रति। कर्तव्य? तुम्हारा मतलब दायित्व का बोझ? शायद जब उसे छोड़ने का मन करने लगे तो दायित्व एक बोझ ही बन जाता है। मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, क्या हमारे सारे दायित्व दूसरों के ही प्रति? क्या हमारे अपने प्रति कोई दायित्व नहीं? हाँ, मैं भी यही महसूस करती हूँ आजकल। आजकल मैंने नहीं महसूस किया। क्यों, अब सब कुछ बदल से गया है क्या? मुझे तो लगता है जैसे मैं ही बदल गई हूँ। क्या चेंज हुआ है? जीने की चाह हुई है। पहले भी तो जी रही थी। पर वो बड़ी मरी सी जिंदगी थी। दुख नहीं था, मानती हूँ, पर कुछ भी नहीं था। अच्छा एक बात, तुम्हारी मैरिड लाइफ तो मानती हूँ, दिवाकर एक बहुत अच्छा इंसान है, अपनी तरह से मुझे चाहता भी है, बच्चे से भी लगाव है, तभी तो जिम्मेदारियों की बात छूट। ऐसे ही बताना चाहूँ तो बताना, नहीं तो जब तुम्हारी मैरिड लाइफ नॉर्मल है तो ये क्या? तुम जानते हो क्या? तुम जो आ गए। चला जाऊं? नहीं, अब नहीं। या तो आया ना होते, ये एहसास न दिलाया होता कि प्यार क्या होता है, साथ क्या होता है, पर अब नहीं होते। तुम जानती हो मैं तुम्हें इतना क्यों चाहता हूं? क्योंकि तुम ऐसी बातें करके सहारा से बोलती हो। शायद हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं अभी। शायद हम लोग इसी तरह से समझते हैं। और प्यार की सबसे यही। हाँ, मैंने और दिवाकर ने भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश की और काफी हद तक समझे भी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं अभय, हमारी शादी को इतने साल हो रहे हैं, लेकिन शायद ही मेरे और दिवाकर के बीच में कभी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो या मतभेद रहा हो। तब कभी क्या? कभी तो नहीं, पर जाने अनजाने हम दोनों समझौते करते चले गए। और अब लगता है कि समझौता प्यार नहीं होता, बल्कि प्यार में तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती अब। हाँ जी, तुमसे मिलने के बाद मैं भी यही महसूस करता। प्यार में इसकी जरूरत ही नहीं, इसीलिए तो हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं। तारीख है 10 अप्रैल। अभय और नीरजा पहली बार मिले थे 18 मार्च को, यानी कि 1 महीना होने को आया दोनों की मुलाकात में। दोनों के हिसाब से एक दूसरे को समझने के लिए भले ही इतना समय काफी ना हो, लेकिन अपने आप को समझने के लिए इतना समय काफी है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए दोनों के सामने थी जिम्मेदारियां, आदर्श और शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन। No, there is no confusion. हमें एक डिसीजन लेना है, एक इंटेलेक्चुअल डिसीजन। अपने और नहीं तो किसी। यानी तुम्हारा मतलब है हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। We should be selfish. No, selfish या self centered होने की बात नहीं है। बात है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू की। कैसे? तुम जानती हो। हाँ, तो इसका मतलब हम लोग कोई टीनेजर्स नहीं है। देखो, तुम 35 साल की और मैं 37 साल का, यानी कि हम लोग अपनी आधी जिंदगी गुजार चुके हैं, या ये कह लो कि हम लोग आधी जिंदगी वेस्ट कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि बाकी के बचे 10-15 साल या 20-25 साल जो भी है, उसमें क्या करना है? देखो, न तुम कंफ्यूज हो और ना मैं। तुम दिवाकर को छोड़ दो।
सालों का साथ ऐसे ही नहीं होता। इतने सालों में तो आदमी पुराने पेड़ों, फर्नीचरों और घड़ियों से भी लगाव करने लग जाता। फिर वो तो तुम्हारा पति है। अब वो पति जिसको तुमने समझा और जो तुम्हें समझने की कोशिश करता और जिसके साथ तुम उसे कितना आघात पहुंचेगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। सोच सकता हूं। कैसे? वैसे कि अब हम दोनों में से किसी एक को त्याग करना पड़ेगा। तुम किसी एक के साथ रह सकती हो, दोनों के साथ नहीं। पर दिवाकर का क्या होगा? क्या क्या जाए? पर बेजान पत्थर बंदर काटने में भी दर्द होता है, मुझे पता है। अभय, तुम ये सब बातें कैसे कह डालते हो? तुम्हारे मन की बात। शायद हाँ, पर मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती है सब चीजें। एक जा विचार एक ही है और कहना भी एक को ही है। That's why I love you, अभय। ओके। ज्यादा इमोशनल मत हो। ये बताओ कि करना क्या है? दिवाकर से बात करके देखो ना। मैं? और नहीं तो क्या मैं बात करूंगा? पर मैं कैसे बात करूंगी? और इसे हिंट दे करके देखो। वो हिट नहीं समझता, तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं है वो। जानता। कैसे? तुम मुझे उसके बारे में 50 बार बता चुकी हो कि बहुत ही सिंपल नेचर का है, डैशिंग नहीं है, सादगी पसंद है, दिखाता नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट नहीं है पर समझदार है, भावुक है, बहुत कम हंसता है, मजाकिया नहीं है, अच्छा है पर बोर है। He is good but good for nothing. Are you feeling jealous, अभय? No, नीरजा, I am not feeling jealous. मुझे दिवाकर से कोई शिकायत नहीं। कभी-कभी मैं सोचता हूँ क्या वो तुम्हारे लायक है? अच्छा चुप रहो। बुरा लगा? नहीं, नीरजा, जो हो चुका उसके बारे में सोचने से फायदा ही क्या? दिवाकर को नीचे दिखाने के ख्याल से क्या ऐसा कुछ नहीं कह रहा, बल्कि कभी-कभी मुझे लगता है उसकी जगह पर क्या होता था। वो बात ही कुछ और होती है अभय, वो बात ही कुछ और होती। अच्छा, मैं चलूं। बात करना तो कल फिर ठीक 3 बजे। ये थी दोनों की वो मुलाकात जब मैं उनसे पहली बार मिला। फिर तो हर दूसरे चौथे, कभी 10-15 तो कभी लगातार रोजाना अभय नीरजा मिलते, बातें करते। यही इसी टेबल पर न जाने कितनी बातें, कितने सवाल, कितने बवाल, कितनी हंसी, कितने गम, कभी ज्यादा तो कभी कम। मतलब समय बीतता है और इंतजार भी बढ़ता है। एक अजीब सी मनस्थिति में लड़ता हूँ। इंतजार का लम्हा, नीरजा की परिस्थितियां, हमारा प्यार, सब कुछ अनंत विस्तार में फैलता चला गया। मन अशांत तो रहता था पहले भी, और इस अशांति के पीछे हलचल सी, एक गूंगा पूछा, मानो हमारे सारे प्रश्न बादलों के घने साए में लुप्त हो गए। सारे उत्तर बिजली की गड़गड़ाहट में मंदिर पर। कितने साल बीत गए, हमारे सारे सवाल और जवाब आज भी इंतजार की सीढ़ियों पर उलटे रहे। झूठा है। अब क्या फर्क पड़ता है हमें?
जिंदगी बिल्कुल बकवास। बड़ी आशिकी चाहिए बुढ़ापे में। देखो पहली बात ये कि मैं पूरा नहीं हूँ, पूरा तुम्हारा दिवाकर योर ओल्ड मैन, समझी? अच्छा बताओ कैसा लग रहा उसके साथ? सच बताओ तो बहुत अजीब सा, या शायद तुम्हारे बार बार कहने की वजह से वो कुछ ज्यादा ही बूढ़ा और ढीला सा लगने लगा। Shut up, okay? कुछ बात कर पाए? तुम बताओ भी, कैसे कह दूं मैं ऐसे? अचानक कैसे कह दूं मैं? तो मत कहो, मैंने तो नहीं कहा तुमसे कुछ कहने के लिए। देखो नीरजा, मैंने जिंदगी में किसी के आगे सर नहीं झुकाया, और नहीं मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मुझे प्यार की भीख दो। जैसा हूँ, जिस हालत में हूँ, मैं उसी हालत में रह सकता हूँ, मैं अकेले रह सकता हूँ। अबे प्लीज नॉर्मल हो जाओ। नीरजा, मैं नॉर्मल हूँ, मेरा नॉर्मल रूप भी अबनॉर्मल है। नो, नॉर्मली यू आर वेरी स्वीट। नीरजा, ये बताओ, कहीं तुम्हें ग्लानि तो नहीं है कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं? हाँ, कभी कभी लगता है जैसे अपने आप को धोखा दे रही हूँ। अच्छा, तुम्हें आत्मग्लानि? शायद नीरजा, हम लोग किसके लिए त्याग करने की सोच रहे हैं? बताओ, तुम किसके लिए त्याग करने की सोच रहे हो? उसके लिए जो तुम्हें समझता तक नहीं। ठीक है, उसके साथ तुम्हारी शादी हो गई, पर शादी ही तो जीवन का अंत नहीं है ना, उसके आगे भी तो बहुत कुछ है। मेरी गलती सिर्फ इतनी सी है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में 10-12 साल के बाद आया, और ये गलती मेरी नहीं थी। समय की एक गलती को अगर हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए कैसा गिल्ट, कैसा कॉम्प्लेक्स? और तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी जिंदगी के साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? उसके लिए कोई गिल्ट या कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। अभी मैंने ये नहीं कहा ना। साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो? कभी तुम दिवाकर का पक्ष लेती हो और कभी अपना, कभी पैर की बातें करती हो, कभी बलिदान की। बोलो क्या कहना चाहती हो, बताओ। आई सेड धीरे बोलो। मैं कौन सा चिल्ला रहा हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, क्या किसी अच्छी भावना के लिए किया जाता है तो जज्बा है, दिवाकर जैसे के लिए त्याग करना कुछ सूट नहीं करता, और फिर वो तुम्हारे बिना मर जाएगा। मैंने भूल गया था कि दिवाकर तुम्हारा पति है और तुम उसे छोड़ दी। अबे देखो, नाराज मत हो। अगर हम दोनों ही एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे तो हमारे बीच रह ही क्या जाएगा? तुम्हारे पास तो दिवाकर होगा। छोड़ो, भूल जाओ उस देर के लिए दिवाकर को। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कैसे भूल जाऊं उसके बगैर से? तुम बताओ, तुम क्या चाहते? तुम्हें, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल बातें तो समझो। बच्चों की तरह नाराज होना और गुस्सा होना शुरू करेगी। मैंने तुम्हारा बड़ा इंतजार किया। जानती हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे गुस्से और खराब रूप में भी हमेशा यही लगा कि जैसे तुम्हें मेरी बहुत जरूरत है। I feel so wanted। हर कोई चाहता है कि वो वांटेड, उसके बारे में कोई कुछ नोटिस करे, जैसे तुम करते हो। कैसे? जैसे तुमने नोटिस किया कि मैं दांतों से नाखून काटती हूँ, मुझे मैचिंग पर्स लेना पसंद है, मैं बहुत जोर से हंसती हूँ। क्या क्या बातें याद रखो अगर तुमने मुझे कितनी बारीकी से ऑब्जर्व किया है। मेरी हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देते हो। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। तुमने मेरा बहुत इंतजार किया है ना? आज भी तेरे इंतजार। बस थोड़ा इंतजार हो रहा है। अभी इंतजार बाकी है। शायद हाँ। अच्छा, चलती हूँ। ये जा, थोड़ी देर बैठ। तुम्हारे पास बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। कितने अशांत वक्त
ना करो प्लीज। फिर कब आओगे? पता नहीं अभी। अभय और गिरिजा अपने प्रेम, समर्पण और दुनियादारी के चक्रव्यूह में उलझे सुलझन की परिभाषा करते रहे और समय पंख लगाकर उड़ता रहा। अभय ने पूछा था ना कि नीरजा कब आओगी, और नीरजा ने कहा था पता नहीं। सच वक्त का किसको पता है, कब कैसे किस रूप में सामने आ खड़ा हो। इस वक्त ने अभय और नीरजा को भी नहीं छोड़ा था। कभी तो एक नई परिस्थिति या चुनौती के रूप में आ खड़ा हुआ दोनों के बीचों बीच। कैसी हो नीरजा? हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक तो नहीं रहती। नहीं ठीक हूँ मैं। दिवाकर कैसा है? अब थोड़ा ठीक है। घर आ गया? हाँ, क्या कहती है डॉक्टर? कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है। उठ भी नहीं सकते तब तक। नीरजा, तुमने बहुत दुख सहा, पर ये सब कैसे हो गया? बस ऑफिस में नॉर्मल काम करते करते स्ट्रोक पड़ा। उससे जब मैं तुमसे आखिरी बार मिलकर लौट रही थी, तभी घर जाने के बाद मालूम चला कि ऑफिस के लोग ही हॉस्पिटल ले गए हैं। घर पर मुझे ढूंढ रहे थे। सच ये दिन इतने परेशानी और तनाव के थे। पहले 5 दिन तो आईसीयू में रखा गया। डर लगता था हर वक्त कहीं कुछ हो ना जाए। रात भर बिना सोए सिर्फ देखती रही। एक बार तो 2 पल के लिए आंख लगी, तभी अचानक बस गनीमत है कि वो बच गया है। अब आगे में अच्छा, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो आज? नहीं तो अब डर लगता है। किसका? शायद इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मतलब तुम चाहते हो कि मैं उस आदमी को छोड़ दूं, जो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है और जिसका मेरे अलावा कोई नहीं है? जब मैंने ये तो नहीं कहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुमने आगे के लिए क्या सोचा? अबे प्लीज! Come on, Nirja, come on. Be a brave girl. That's you. Nirja, यही वजह से तुम्हें कोई कष्ट हो, या तुम्हें कोई दुख हो, तो मुझे तुमसे प्रेम करने का कोई अधिकार ही नहीं। चलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे इतनी अच्छी तरह समझते हो अबे, इसीलिए तुम्हारे साथ की जरूरत महसूस करती हूँ। नीरजा,
ये आपस की समझ ही तो है जो एक दूसरे को यूं बांधे रखे। एक कहे दूजा समझे और कभी कभी बिना कुछ कहे भी सब कुछ समझे। यही तो है इश्क। इश्क अपनी रूहानी तबीयत, अथाह समर्पण और इंतजार की बेलौस मौजों पर तैरता वक्त को चुनौती दिए जाता है। अभय और नीरजा ये भी ऐसी ही मौजों पर सवार हो चुके हैं। अब देखें नियत इन्हें कहां ले जाती है, वक्त इन्हें किस मुकाम पर पहुंचाता है। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पहले से तो ठीक ही लग रही। दिवाकर कैसे? अब थोड़ा आराम है। सॉरी, उस दिन मैं बहुत परेशान थी दिवाकर को लेकर। नहीं, ऐसी कोई छोड़ो, तुम्हें बुरा लगेगा। नहीं, बताऊं ना। डॉक्टर्स की रिपोर्ट है कि स्ट्रोक के साथ कुछ नर्वस सिस्टम में भी हुआ है और अब शायद दिवाकर कभी चल नहीं सकते। ओह गॉड। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, डाउट है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। वैसे अब कैसा? कल थोड़ा आराम था, थोड़ी देर बात भी की, लेकिन वीकनेस बहुत है। चलो, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र। आशा है कि दिवाकर जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं भी यही मदद मांगती हूँ। फिर कहना क्या चाहते हो? मैं कहना कुछ नहीं चाहता जी। मैं तुम्हें सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ 15-20 साल पहले की बात, जब तुम ये कह करके गई थी कि कुछ ना कुछ फैसला जरूर करोगी। मुझे पता था ये सवाल जरूर होगा। अब है, मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। कितना? बोलो कितना? जब तक ये बिल्कुल ठीक ना हो, जब तक ये तुम्हारे बिना जी ना सके, तुम्हारे बिना जीने का आदी ना हो जाए, या तुम्हारे बिना मर ना सके। मैंने बहुत सोचा और अब मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि शायद हम लोग कुछ ज्यादा ही सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे। देखो, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अबे प्लीज, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं समझ रहा हूँ। You are only being stupid. What? Say that again, अबे। तुम अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल करने जा रही हो। अबे! I love you, अबे। I know. कैसे? अभी तो तुम मुझ पर इतना नाराज हो रहे थे। क्योंकि तुमने मुझसे भी कहा था ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। क्या सोच रहे हो? वही जो तुमने मुझसे कहा। अबे देखो, मैंने ऐसा नहीं कहा कि हमेशा का निर्णय है। बस मुझे कुछ समय और दे दो, प्लीज। तुम्हारा घर जाने का समय हो गया है। नहीं, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मन में बहुत बड़वाहट भर गई।
अपने आप को संभालो अभी। ये क्या विदाई के शब्द? नहीं, कल कब मिलोगे? कल क्यों? जो बात करना है तुम आज ही तो करना चाह रही थी। अबे देखो, नाराज मत हो। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती या मुझे अपने फैसले पर कोई परिवर्तन करना है, लेकिन अभी मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है। तो शायद भगवान भी नहीं चाहता अभी। अपनी असफलता के लिए मैं भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकता। जो कुछ भी है, पर अभी मैं नीरजा, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। तुमसे रोज मिलने के लिए चला आता हूँ तो यह मत समझना कि मैं अपने जिंदगी का कोई कारण ढूंढ निकालूंगा। मैं जानता हूँ आज छोड़ोगे नहीं मुझे। हाँ, चलो। कल कब मिलोगे? कल जो बात करनी आज ही करो। अब कब मिलोगे तुम? जब इंतजार का पानी। बीच में नहीं मिलोगे? नहीं, बीच में मिलने से कुछ नहीं, कहीं ना कहीं तो पहुंचना ही चाहिए ना। चलो, दिवाकर तुम्हारा इंतजार कर रहा। ठीक है, एक बात सच सच बताना, कहीं तुम मुझसे छुटकारा तो नहीं चाहते? कहीं तुम्हें अपने किए पे कोई पश्चाताप तो नहीं? देखो, मैं तुम्हें कुछ करने या कहने के लिए कुछ भी फोर्स नहीं कर रहा। जानती हूँ मैं, मुझे सब पता है अबे। देखो अबे, मैं तुमसे अलग होना नहीं चाहती और ना ही मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा हो रहा है। बस अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे थोड़ा समय और दे दो अबे। नीरजा, कोई किसी को समय नहीं दे सकता। आदमी सिर्फ अपना समय बर्बाद कर सकता है और हम लोग ऑलरेडी काफी समय वेस्ट कर चुके हैं। जो कुछ भी है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं चलती हूँ अभी। नीरजा, मुझे थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ दो। क्यों? बस कुछ देर के लिए। नीरजा, मेरी बात सुनो।